Hello everyone, I welcome all of you on Gate Chemical Planet and I would like to thank all the students who subscribed my channel. So student, in this video basically we will discuss some of the interview questions based on the petroleum refining engineering. Petroleum refining engineering is a very important subject because many times huge amount of questions can be asked in the PSU's interviews related to the petroleum refining engineering. So it is important to discuss some questions which are very basic and related to the refining portion. It is my request to all the students that if they have not watched my last video on short notes on mass transfer, then the link in the description box is given. Go to the link and watch the full video, as it is very beneficial for all the students, get experience, and those who are preparing for the interviews also, because this notes are very important for all type of students. Okay, so the link is given in the description box. Okay, go to the link. So now without wasting the time, we will start the video here. First question is, which is the most appropriate statement for alkynes? Sometimes in interviews some basic questions has been asked, and by hesitation students are not able to give the proper answer. So what do you mean by the alkynes? They may ask in the interview. So alkynes are basically open chain hydrocarbons containing one carbon-carbon triple bond. This is the alkynes. So the definition of alkynes are, they are open chain hydrocarbons containing one carbon-carbon triple bond. And also the boiling points are slightly higher than those of corresponding alkenes. alkynes के जो boiling points होते हैं वो corresponding alkanes से ज़्यादा होते हैं. ओके, सो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हैं. बेसिकली यहाँ पर मैंने एल्काइंस की डेफिनेशन लिखी है ताकि आप उसको यहाँ से याद कर सकें कि एल्काइंस क्या होते हैं. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखा है, तो अधिकतर टाइम्स मैं आपको उसके आंसर बता रही हूँ. आपको क्वेश्चन के साथ आंसर पता होना चाहिए कि एल्काइंस किसको कहते हैं. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे. सल्फर कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल इन द फॉर्म ऑफ विच कंपोनेंट? Sometimes in interview it is asked that sulfur compounds are present in the crude oil in form of which component? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी. सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, they are present in crude oil in the form of impurities. So what are the impurities present in the crude oil? The impurities present in the form of sulfur compounds, nitrogen compounds and the oxygen compounds, and some trace metals are also present in the crude oil and known as the impurities. Okay, so sulfur compounds are basically present in the form of thiols in the crude oil. Okay, so this is the correct answer is thiols. Now the third question is, world's largest floating gas refinery name Prelude, that weighed 6 times as much as an aircraft carriers is set up by which company? तो स्टूडेंट, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फ्लोटिंग गैस रिफाइनरी जो है उसका नाम क्या है, और जो फ्लोटिंग गैस रिफाइनरी है वो कौन सी कंपनी ने बनाई है. तो जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्लोटिंग गैस रिफाइनरी है उसका नाम है प्रिल्यूड. ओके, तो एक तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि इसका नाम क्या है, और ये कौन सी कंपनी ने बनाई है. इसको बनाया है शेल ने. तो कई बार आपके पास होता है ऑप्शन की रॉयल डच शेल और शेल. तो रॉयल डच शेल का पूरा नाम जो है, शेल का जो पूरा नाम है वो रॉयल डच शेल है. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो शेल है. शेल ने वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट फ्लोटिंग गैस रिफाइनरी बनाई है जिसका नाम है प्रिल्यूड. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के पर्पज़ से. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर एरोमेटिक्स? एरोमेटिक्स क्या होते हैं? दीज आर अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स, दीज आर वेरी रिएक्टिव, टॉल्यूइन एंड ज़ाइलीन आर एरोमेटिक्स. तो यहाँ पर मैंने एरोमेटिक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश की है कि एरोमेटिक्स क्या होते हैं. एरोमेटिक्स
अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, वेरी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, टॉल्वीन, बेंजीन और जाइलीन जो हैं जिनको हम मिला के बोलते हैं BTX, बेंजीन, टॉल्वीन एंड जाइलीन, ये सब होते हैं एरोमेटिक्स। बेंजीन, टॉल्वीन एंड जाइलीन आर दी एरोमेटिक्स। तो यहाँ पे टॉल्वीन और जाइलीन के बारे में पूछा है, दिया गया है कि वो एरोमेटिक्स होते हैं। येस, दे आर एरोमेटिक्स एंड दे आर वेरी रिएक्टिव साइक्लिक कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो यहाँ पर इसका ऑल ऑफ दी अबव मैंने लिखा है, यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आपको इसकी डेफिनेशन ढूंढने में दिक्कत ना हो कि एरोमेटिक्स क्या होते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एरोमेटिक्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल इन द फॉर्म ऑफ विच कंपोनेंट। तो यहाँ पर पूछा है कि ऑक्सीजन कंपाउंड्स जो कि क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ऑक्सीजन कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में ऑक्सीजन में क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। मर्कैप्टेंस और थायोल्स इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सल्फर कंपाउंड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो थायोल्स और मर्कैप्टेंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं क्रूड ऑयल में वो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो सीरीज़ है आपकी इंटरव्यू के लिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। इसके बाद भी मैं और क्वेश्चंस आप लोगों को फर्दर प्रोवाइड कराती रहूँगी। आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पर। गेट केमिकल प्लैनेट को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, हैव अ नाइस डे।